So as per the last lecture, we have discussed the complete alimentary canal. Perfect. And in this complete alimentary canal, we have gone through a complete structural part. And there were 5 points. Can you tell me what were those 5 points? Types of nutrients, mode of nutrition, types of nutrients, types of nutrition, mode of nutrition, steps in nutrition, and diffusion osmosis. What were those 5 points based on which we were discussing? Yes, sir. Yes, sir. Evolutionary trend, anatomy, mechanism, and neural regulation of the physiology. And disorders. Yes, sir. Am I right? Check. So, human digestive system. In this human digestive system, there were 5 points that we are going to on whatever the physiology. First, we will go through the evolutionary trend of that particular physiology. The second one will see the anatomy and the mechanism structure. The third one will see the mechanism, or should say actual physiology. And the fourth that will discuss how this physiology is regulated by the nervous system. And fifth and the last one will discuss what are the disorders or abnormal conditions of that particular physiology. So first point we discussed the evolutionary trend, feeding mechanism, types of nutrition, modes of nutrition, that everything we discussed. But एक question विनर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. If we are trying to discuss about the evolutionary trend, can you tell me कि phototrough पहले आया या autotrough? Phototrophs. Phototrophs. कौन बोला? शौनक. शौनक. आपको लगता है पहले phototrough आया, is it? Yes, sir. मुझे लगता है पहले heterotrough आया. सर पर पहले सनलाइट ही तो अर्थ पे आती थी, तो उससे ही अगर फूड का सोर्स एक बनता होगा, क्योंकि पहले कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं थे जिनके ऊपर हम फीड कर सके. शौनक थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी आर रेजोनाइट्स. थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा. क्या लगता है पहली लाइफ वायरस रही होगी या पहली लाइफ यूनिसेल्युलर रही होगी कि मल्टीसेल्युलर? यूनिसेलुलर. फर्स्ट लाइफ यूनिसेल्युलर. परफेक्ट. फर्स्ट लाइफ जो है, इफ इट इज यूनिसेल्युलर, सो व्हाट डू यू थिंक? इट वाज लिविंग, मतलब सिंस इट इज लाइफ, इट हैज टू बी लिविंग. सो लिविंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग और फ्रॉम लिविंग? Non-living. Non-living. Obviously non-living, bhai. That's why I told you I'll teach you that hierarchy. In that hierarchy, how we started from cell, but how this cell becomes live because of metabolism. And what perform this metabolism? Those are biomolecules. Molecules, not living. But since they make the system living, named biomolecule. So the first life was virus. First life was protovirus. In 12th, somehow, if you will continue with some biology, some of you will continue with biology, then I'll teach them. Not virus, protovirus, which is the connecting link between non-living to living. So, आज भी वायरस जिंदा है केवल बॉडी में. वायरस जिंदा है केवल बॉडी में. फिर वहां पर एक क्वेश्चन मार्क कि फर्स्ट यदि वायरस आया सर, तो कोई लाइफ रही होगी तब ना उसकी बॉडी में क्या होगा? नो, वो वायरियन की तरह पड़ा होगा. वो वायरियन की तरह पड़ा होगा. वायरसेस का इतिहास बहुत पुराना है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस इयर्स ऑफ बैक, बिकॉज दे आर ओनली द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स व्हिच बिकम्स लाइव इन द बॉडी ऑफ होस्ट. एंड उस वायरस से धीरे धीरे ग्रोथ होती गई होगी. तो पहले आया बैक्टीरिया. पहले आया बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक रहा होगा, क्योंकि उस समय केमिकल्स ही अवेलेबल थे, लाइफ तो अवेलेबल थी ही नहीं.
लाइफ तो थी ही नहीं, तो उस समय केमिकल्स ही अवेलेबल थे, उस पर बैक्टीरिया ने फीड करना शुरू किया, कीमोट्रॉफ। फिर वायरस जो है, वायरस ने बैक्टीरिया पर अटैक किया होगा, सी किया होगा मतलब सिंस एविडेंसेस आर देयर, और उसने पैरासाइटिक मोड स्टार्ट किया होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड स्टार्ट किया होगा, देन कहीं पर वो फोटो ऑटोट्रॉफ आए होंगे, और जब पूरा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक हुआ होगा तब मतलब एग्जिस्टेंस आया होगा फोटो ऑटोट्रॉफ का, बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस द वेस्ट गैस, व्हाट इज द वेस्ट गैस? Oxygen. Oxygen. That is simple. In photosynthesis, the waste product is oxygen. Then only oxygen increases in the atmosphere. Otherwise, wherever you will read, you will find the primitive atmosphere was reducing atmosphere. Reducing atmosphere. Hydrogen की presence ज्यादा, क्योंकि water ही water था. H2O. H2O. मोर हाइड्रोजन लेस ऑक्सीजन, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ होगा फोटोसिंथेटिक कोड का, और जब फोटोसिंथेसिस एक बार शुरू कर दिया ब्लू ग्रीन आइवीज ने, तो फिर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा और लाइफ एनारोबिक से एरोबिक पर स्विच कर गई। डॉक्टर शौनक, सॉरी विनर शौनक, अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट, perfect. चलिए, so that was all evolutionary train that we discussed, what were the feeding mechanisms they had, or whatever the mode of their nutrition they had. The second point was anatomy. On board we have drawn this complete anatomy, and through image or screen sharing we have learned this complete structure. And I shared an image. Manoli, I shared an image. Namisha, am I right? Yes. Perfect. And I expect कि आपने उस इमेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। लीजा, मानस, चैतन्य, am I right? Yes, sir. Yes, sir. झा, ओम मिश्रा, प्राप्ति, प्रथमेश, agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों। तो एनाटॉमी में थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल तो देख लिया, बट वन बाय वन भी तो देखना पड़ेगा। तो वन बाय वन देखेंगे, बकल कैविटी, उसके सारे स्ट्रक्चर्स, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, टंग, टीथ, ग्लैंड, सारा स्ट्रक्चर। फिर ईसोफेगस, उसका स्ट्रक्चर, फिर स्टमक, उसका स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें किस पर चलना पड़ेगा? बकल कैविटी। अग्री? Yes, sir. Yes, तो sir. यस, तो डॉक्टर विनस हेडिंग डलेगा बकल कैविटी। प्लीज पुट द हेडिंग बकल कैविटी। वन बाय वन वी विल गो। वन मोर क्वेश्चन I saw the NCERT and came into my mind. Do you know what is parasite? Anyone? Kaushiki, Yes, Om, sir. Govardhan, what is parasite? Prathamesh Mahajan? Sir, it obtains food from another organism or host without harming it. अरे विदाउट हार्मिंग इट, शौनक क्या ही बात कर रहा है? सर मतलब सेल्स को कोई No, दूसरा sir, डैमेज harming. नहीं पहुंचाते हैं। अरे पैरासाइट हार्म नहीं करेगा तो फिर पैरा क्यों, साइट क्यों, पैरासाइट क्यों है वो? नो, डॉक्टर प्राप्ति, सॉरी विनर प्राप्ति। In that the food is obtained from the host by taking the nutrients and other minerals from that host. सिद्धि बोरसे। Sir, they takes nutrition from other living organism as host body. Then what is heterotroph? आप नहीं लेते हैं न्यूट्रिशन प्लांट से? Sir, by harming the host. Parasites By- harm the host and cause them weak. सर वो उस होस्ट पे लिव मतलब रहकर फूड ऑब्टेन करते हैं। Smera, can you tell me what is parasite? Sir, parasites are those organisms which
utilize other organisms as host, take their nutrition, and harm them for the expense. Being a resonate, my dear, every word you must know. Parasite, since you are resonites, आप बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो दोनों ही जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, यकीन मानिए. इट्स नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट इफ नॉट, यदि आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड. इफ नॉट, जस्ट आस्क मी. पैरासाइट, सी स्पेल द टर्म. पैरा मीन्स अदर, साइट मीन्स जगह. पैरासाइट, दूसरी जगह. So all those organisms which complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. Repeating my statement. All those organisms which complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host, this is called parasite. Without any exception, you can apply this definition to all the parasites. कोई मतलब नहीं, harming, non-harming, least harming, complete harming, कोई मतलब नहीं, सब nonsense. Complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. If in, endoparasite. If on, ectoparasite. Understood? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो. ओम, जोर से बोलिए. सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना आप. वो सिंपल डेफिनेशन है, all those organisms which complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host are parasite. Oh, यस. okay. Understood? Om, Kaushiki, Siddhi, Lisa, Prapti, Prathamesh. Yes, sir. Yes, sir. तुरंत एक सवाल, आंचल, ईशान, उर्वी, तुरंत एक सवाल आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम विनर्स, तुरंत, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सवाल नहीं आया. स्मेरा, am I audible? Yes, sir. Shreya, Siddhesh, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Siddhesh, we all people are parasite for our mother, is it? Yes, sir, we are. Yes, sir. You are the parasite for your mother, is it? Yes, sir. Fortunately, I am not a parasite for my mother. Ask your mother. मैं तो नहीं हूं दोस्तों. स्मेरा मैडम, you are parasite? Yes, sir. You are parasite for your. Actually, I'm not. I don't know because I'm not sure if the period while we're inside the mother's womb is considered a stage of life. I'm not sure. So, Madam, parasite, I absolutely agree. Again, repeating a statement. Complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host. And yes, we have completed one stage. That gestation period, that pregnancy period, what mother was enjoying. This period we have completed, that fetal stage we complete in the body of mother. But fortunately, we two are the same species. Smira, do you understand? yes, sir. How come an organism parasites their own organisms? Smira, Yes, sir. understood? Yes, sir. Understood. Plasmodium, which causes malaria. Plasmodium, which causes malaria, yes, they complete a sexual life in our body and sexual life in mosquito's body. Yes, it is a parasite. So parasite, para means other than the species. So please note it. Na? Chaliye. Bachon, let us start with one by one. The first part is mouth. The first part is mouth.
बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मानस अग्रवाल, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके, द फर्स्ट पार्ट माउथ, इसमें मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं, नॉट अ सिंगल पॉइंट आई नीड टू एक्सप्लेन यू, बट यस थोड़ा सा कुछ पार्ट यदि मैं बताऊं आपको, तो माउथ में अपर लिप, लोअर लिप, ये सबको पता है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, अपर लिप लोअर लिप ये लिखना है आपको बस। एंड गम्स एंड वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मतलब पार्ट बिटवीन lips and gums, parts between lips and gums, agree? Yes, sir. All 3 points, all those structures, everything, everyone knows. Perfect. चलिए, Yes, sir. yes. अब मैं यदि बात करूं आपसे, तो वर्टिकल ग्रूव, फिल्ट्रम अपर पार्ट में, these structures, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है माउथ का, यहाँ बीच में खांच होती है, बट नथिंग इज रिक्वायर्ड, वो सब अपने को नहीं पढ़ना है। सेकेंड पार्ट की यदि मैं बात करता हूँ, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज बकल, this is buccal cavity. Yes, this buccal cavity definitely has so many structures, and we should write this buccal cavity as oral cavity or the inner part of the mouth. Perfect. This buccal cavity is also known as buccopharyngeal cavity, क्योंकि pharynx वहीं पर होता है, so called as buccopharyngeal cavity. Perfect. After that, oral cavity, stratified squamous epithelia, stratified squamous epithelia. अब यदि इस पर मैं सवाल बताऊं या सवाल पूछूं, तो डेफिनेटली there will be two structures, one is keratinized and one is non-keratinized. If it is keratinized, it is what? Dead. If it is non-keratinized, then it is what? Living. If it is dead, it will found in cattle. इसलिए तो no effect of spines, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। हम यदि कोई कांटे वाला पार्ट खा ले, जैसे बैंगन होता है, बैंगन के क्राउन पर, हाइब्रिड बैंगन के जो क्राउन होते हैं, उस सॉरी ट्रेडिशनल ब्राउन अपना बैंगन जो होते हैं ब्रिंजल्स, उस पर स्पाइंस लगे होते हैं उसके क्राउन, वो हम नहीं खा सकते, नहीं तो ये कट जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा। वो नॉन केराटिनाइज्ड है, वो चबा भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। वो सॉरी वो केराटिनाइज्ड है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन सारे नीट के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये लॉजिक हो गया, ये लॉजिक हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गया। So this type of questions asked in NEET and this type of question asked in KVP. Okay. सर हाँ, सर वो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अरे सिंपल है। केराटिन की लेयर है बेटा, अंदर जो ओरल कैविटी है ना ओम, उस पे एक लेयर है केराटिन, विच इज डेड लेयर। अब यदि कोई कांटे वाला पार्ट आपने खा भी गया, स्पाइन वाला पार्ट खा गया, तो वो कटेगा फटेगा, बट ब्लड निकलेगा क्या उसमें? नो सर। नो, वो कैटल्स खा जाते हैं ना, जैसे गोट क्या करती है, गोट तो कांटे वाले भी चीज खा जाती है ना। हाँ सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए आगे की यदि मैं बात करूं, तो बकोफेरेंजियल कैविटी हो गई, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया हो गया। स्ट्रक्चर बताता जा रहा हूं, उसके लॉजिक बताता जा रहा हूं, उसके इंफॉर्मेशन बताता। पहले पैलेट दो होते हैं, अपर लोअर वन सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट की यदि बात करूं तो इसमें होते हैं रूजेस,
Rouges, which are more in carnivores. कोई बता सकता है ऐसा क्यों? Sir, because they are flesh eaters. Perfect, because they are flesh eaters. तो जब वो मांस पकड़ते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो ग्रिप बननी चाहिए. वैसे भी आप देखेंगे तो हैंड वॉश करके अपना फिंगर आप बकल कैविटी में डालिएगा, तो जब आप रिवर्स मोड में फिंगर बाहर निकालेंगे तो विल फाइंड कि वो कहीं पर हल्के हल्के से जर्क्स लगते हुए आ रहा है, कहीं अटक रहा है, क्योंकि वो रूजेस छोटे छोटे से रूजेस, वो परमानेंट होते और मजबूत होते यदि वो फ्लैश ईटर हो, सो दैट ग्रिपिंग रहे, स्लिप आउट नहीं हो जाए फूड. अंडरस्टूड प्राप्ति, प्रथमेश? Yes, sir. परफेक्ट. उसके बाद बच्चों बात करते हैं वेलम, जिसे यूबुला कहते हैं, वेलम पेलाटी जिसे यूबुला कहते हैं. वेलम पेलाटी जिसे यूबुला भी कहते हैं. वेलम पेलाटी यूबुला वाला पार्ट होता है, ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का. मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट. मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट. और बेटर है soft palate. Yeah, soft palate that hangs in pharynx. That hangs in pharynx. Okay. उसके बाद बात आती है यार, इसी बकल कैविटी में भी बात करते हैं तो टंग भी आती है. ये सब स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं मैं, सारे स्ट्रक्चर लिखते चलना आपने. इन सबका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, टंग का बनाएंगे और टीथ का बनाएंगे. टंग का स्ट्रक्चर बनाऊं या शेयर कर दूं? कोई बात, थोड़ा सा बनाता हूं, थोड़ा शेयर. आपका वो एरो करके क्या लिखा है? Which one? This one? एरो करके जो लिखा है उसके आगे. This one? यस सर. Soft palate. Soft palate. Agree? यस सर. टंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों, क्योंकि एकदम स्क्रीन पे दिखाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा. Sir, please add Ishani is in waiting room. अंदाजा कि कैसे बनाया जाता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, स्क्रीन शेयरिंग से भी काम हो जाएगा. लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि एक बार जब बनता है बच्चों, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. I hope visibility is clear, winners.
Yes, sir. Yes, sir. Epiglottis, palatine tonsils, lingual tonsils. The video is blurred. It's clear, my dear. It's absolutely clear. Circumvallate, number 1, circumvallate. Number 2, filiform. Filiform papillae. Number 2, filiform papillae. Number 1, circumvallate papillae. Number 3, fungiform papillae. Sweet, sour, salt, bitter. Sweet, salt, sour, salt, and bitter. Sequence. Anterior to posterior. Noted, winners. Yes, sir. Yes, sir. इमेज में शेयर कर दूंगा बच्चों, समझने पे जोर देते हैं.
डेफिनेटली इमेज विल बी शेयर्ड विथ यू ऑल. थोड़ा सा समझने पर जोर दे, बात को समझिए. ये सब स्ट्रक्चरल बकल कैविटी के आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. द स्ट्रक्चर इज टंग. This tongue, definitely there are so many functions, and if you know, if not, then you must know this is the strongest muscle of the body. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, ताकत होती है इसमें, और वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे भी वाकिफ हैं जबान की ताकत से. Am I right? मानस भाई, Yes, sir. जबान की ताकत से अच्छे अच्छे वाकिफ होते हैं, और ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ना, जो किसी के सामने चाहो तो नहीं झुकती और नहीं टूटती. और ये इतनी ज्यादा वेस्कुलर है, इतनी ज्यादा वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, कि यदि कभी खाना खाते समय दब जाए, कट जाए, तुरंत ब्लड बाहर आ जाता है. इतनी ज्यादा वेस्कुलर है, और इतनी वेस्कुलर होने की वजह से ही इतनी ज्यादा स्पॉन्जी भी है, इसलिए इसकी हीलिंग भी फास्ट हो जाती है. आप कभी भी फील कीजिएगा दोस्तों, यदि फेशियल रीजन पर कोई भी वुंड हुआ है, कोई भी वुंड हो, किसी भी प्रकार का जख्म हो, इसकी हीलिंग कंपैरेटिवली फास्टर होती है एज कंपेयर टू वुंड ऑन नी और वुंड ऑन लेग और हैंड्स, व्हाट एल्बो, कहीं पर भी हो, बस इसकी हीलिंग फास्ट होती है. द रीजन इज हाईली वेस्कुलराइज्ड. हाईली वेस्कुलराइज्ड. जरा कट लग जाए शेविंग करते करते तो तुरंत खून आ जाएगा. हाथ वाथ पर कहीं लग जाए तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, कुछ भी कर लो, ब्लड नहीं आता, क्योंकि उसमें डीप है, इतनी वेस्कुलराइज्ड नहीं. यू गॉट द कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the stomach, which is highly vascular, highly strong muscularized, it has some papillae: circumvallate papillae, filiform papillae, and fungiform. I did not write the fourth one. But why I didn't write it? Because it was not present in humans. But I should not say like this, it is not present at all in humans. It was present in fetal stage. It was present. तो उसको मैं नोट करके लिखना चाहूंगा कहीं पर, so that आप गलती से भी गलती ना करें. नोट. इतना लंबा लिखने की बजाय अपन सीधे सिर्फ उसका नाम लिख देते हैं. That is foliate papillae. Foliate papillae disappears with birth. और इसमें लिख दूं present in herbivorous. Herbivores. Foliate नाम से ही समझ में आ रहा बच्चों. Foliage means leafy. Foliage means leafy. अब सवाल है कि वो क्यों हम में प्रेजेंट थी बर्थ के पहले? Not required. Expected to be, supposed to be vestigial. But definitely the scientists are expecting that with the evolutionary time or with the course of time, definitely it will be disappear, or it will not be present at all on that tongue with the time. Perfect. But it was present. So it is, I'm not discussing here. There are three papillae: circumvallate papillae, filiform papillae, and fungiform papillae. These are the papillae on which there are some taste buds. First, the muscle, strongest muscle, vascularized muscle. It has some vallets, some papillae, circumvallate, filiform, and fungiform. Foliate is not considered in humans. So we have three papillae, and on these three papillae, some are having taste buds and some do not. So this is the basic and important question that is usually asked in competitive exams. Which of the following papillae do not have taste buds? Simple सा question. So हमें ये लिख लेना चाहिए कि which papillae do not have buds and which have. So the first one, the circumvallate. The circumvallate papillae, which is largest of all, having taste bud. TB present. TB present. TB means taste buds. Then the fungiform papillae. Again, TB present. TB मतलब taste buds.
इस पर टेस्ट बड्स होती हैं, बट द फीडिफॉर्म पैपिली जो थ्रू आउट टंग पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, नो टेस्ट बड. This is the basic question that is frequently asked in competitive exams. Perfect. Yes, sir. Sir. Noted. Yes, Yes, sir. sir. तो इसीलिए स्पिनिफॉर्म फैमिली ये टेस्ट बड्स नहीं होती, लेकिन स्मॉलेस्ट होती है, और स्मॉलेस्ट होने की वजह से ही मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा यदि कोई होती है तो दिस इज व्हाट, this piliform, but unfortunately no taste buds are there. Then what are those taste buds perform? The perception of taste. And for what? मैंने anterior to posterior margin, मतलब from this place to this place. Sweet and salt सामने पता लगेगा थोड़ा सा, again sour और फिर एक salt, पूरा area is salt, अच्छा खासा salt का concentration को determine कर सकता है, diagnose कर सकता है, and then last one is bitter. So in this way, anterior to posterior, sweet and salt, sour, salt, bitter. And this structures lingual tonsils, palatine tonsils. मैं अब आपको एक वॉल्डेयर रिंग बताने वाला हूँ. वॉल्डेयर रिंग, वो वॉल्डेयर रिंग कुछ इस तरह से हो. मैं आपको रिंग शेप में स्ट्रक्चर बताऊंगा. वो रिंग शेप का स्ट्रक्चर जस्ट इमेजिन, अब मैं आपको 3D तो नहीं बता सकता, जस्ट इमेजिन कि वो जो फेरिंग्स है और टंग है उसके बीच से लेकर यहां पर एक रिंग बनी हुई, अंदर की तरफ से, बाहर से नहीं, अंदर की तरफ से एक रिंग बनी है. बिकॉज ह्यूमन बॉडी का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ये है दोस्तों, wherever our body finds these are the direct openings to the external environment, like mouth, where there is 100% chance to enter the pathogenic bacteria or pathogens directly into the body, like mouth, nostrils, eyes, ears, and urinary pore and anal pore. These are the 5 direct opening in the body. Otherwise, मजाल नहीं कि कोई अपना स्किन को क्रॉस करके चला जाए, until unless there is a cut. कोई कट लगा है, वुंड है, वो अंदर ब्लड में जा सकता है पैथोजन. Otherwise, wherever there are the openings, our body placed a lymphatic system, like police station all there. हर जगह पर दिए, कहीं पर भी देख लीजिए. इधर पे यदि किसी प्रकार के इंसेक्ट बाइट हुआ ना दोस्तों, इंसेक्ट बाइट हो या किसी प्रकार का नर्व का डैमेज हो या किसी प्रकार का ब्लड वेसल का डैमेज हो, मेजर डैमेज, आपको अंडर आर्म में थोड़ा सा पेन फील होगा. यदि उस पर इंफेक्शन होने लगा तो सबसे पहले यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस पूरे एरिया का पुलिस स्टेशन दिया है, यहां पर इस पूरे एरिया का पुलिस स्टेशन. इवन इन एसिटेबुलम कैविटी, जहां पर भी लोअर लेग में यदि कोई इशू आ रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट, पैथोजेनिक अटैक्स, सो इंस्टीड कि सबको एक कॉमन जगह पर कहीं पर दे दिया जाए, एवरीवेयर, बिकॉज आवर बॉडी डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन. So at every step, our body has police stations. Why I called it police station? These are the lymphatic organs, which have abundant, most abundant WBCs, our body soldiers. वैसे ही एक यहाँ दे दिया गया. Because 1, 2, 3, and 4, but total openings are 7. 2, 2, 4, 2, 6, and 1, 7. Repeating, 2 ears, 2 eyes, 2 nose, 1 mouth. 7 openings open at a point near the pharynx. Near the pharynx. That's why somehow you probably you experience that if someone is putting a drop, a medication through ear, just because ear pain ho raha hai ya ear mein infection ho gaya hai, if we put a drop of ear drop in ears, sometimes its taste occurs in our mouth. Have anyone experienced? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sometimes what happens if we drop an eye drop in the eyes, sometimes taste comes into mouth. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Because there is a common opening, my dear friends. There is a common opening, and this opening is eustachian. Because there is a tube is
eustachian tube that comes from ear. यहां से एक ट्यूब आती है. That's why I come to the point. एक लॉजिक याद आ गया मुझे, कंसेप्ट पकड़ा गया. Suddenly, have you ever experienced कि आपको बिना बताए your friend, your relative, your elder, younger suddenly crack a firecrack, तो तेजी से पटाखा आपके साइड में फोड़ दिया हो, तेजी से आपको बिना अननोइंगली यदि कोई पटाखा फोड़ दिया हो, what is your reflex? हम चमक जाते हैं. Yes. Am I right? Am I right? Yes sir. भाई ऐसा क्यों किया आपने? सबसे पहले तो आपने क्या किया, रिफ्लेक्स था कि हाथों को इधर पे रख दिया सो दैट वो इंटेंसिटी ईयर ड्रम को गड़बड़ ना कर दे. दूसरा, आपने माउथ ओपन कर दिया क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब है, वो पास ऑन कर देगी, एक्स्ट्रा प्रेशर को ड्रम पर पड़ने के पहले पास ऑन कर देगी, और आपने खोल के उसका प्रेशर निकाल दिया. दैट मीन्स अच्छा हुआ कि वो यूस्टेकियन ट्यूब है सो दैट प्रेशर आपका पास ऑन हो. तो ऐसी ओपनिंग वहां पर है बच्चों, उस ओपनिंग से सारे पैथोजेनिक मटेरियल एंटर कर सकते हैं, इसलिए यहां पर एक आपको लिम्फेटिक ऑर्गन दे दिया गया, एंड दैट इज नथिंग अदर देन व्हाट? Lingual tonsils. टॉन्सिल्स, नॉट लिंगुअल टॉन्सिल्स. तो एक लिंगुअल टॉन्सिल, एक पैलेटाइन टॉन्सिल. परफेक्ट. लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, मैं सब बताऊंगा, बट इन दैट रिंग. तो ये सब टॉन्सिल्स क्या करते हैं? दे आर द लिम्फेटिक ऑर्गन्स. और एक मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन ये है कि हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गया है. अरे टॉन्सिल्स होने क्या है भाई, टॉन्सिल्स बढ़ गया है. दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस. और मैंने आपसे कहा था टाइटिस वर्ड यहां पर भी आएगा. टाइटिस, दैट मींस व्हाट? Increase. इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन. हेपेटाइटिस, हेपेटिक सेल में इन्फ्लामेशन. पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन. मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन. टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन. नॉट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन. किसी प्रकार की डैमेज की वजह से वो माल फंक्शनिंग शुरू कर देता है, दैट इज टाइटिस. अंडरस्टूड विनर्स? Yes sir. Yes, You sir. grab the concept? Yes sir. Yes sir. परफेक्ट, परफेक्ट. सो उस वॉल्डेर रिंग को भी मैं अभी बताऊंगा. क्यों? क्योंकि इससे पहले कि मैं इसोफेगस में जाऊं, आपको ये वाला पार्ट मैं पूरा कर दूं. तो अभी टंग के साथ मैं टीथ बता दे रहा हूं, या वॉल्डेर रिंग बता दूं. पहले सबसे पहले वॉल्डेर रिंग हम लोग बना लेते हैं. इसका सारा पार्ट क्लियर हुआ दोस्तों आपको? Yes sir. अब मेरे साथ मैं आपको एक इमेज शेयर कर दूं. पहले उस इमेज को देखिए, ज्यादा टेक्निकली और ज्यादा बेटर तरीके से आप देख पाएंगे उसे. उसको मैं देखने के पहले इसके फंक्शंस लिख दूं. मैं इमेज शेयर कर रहा हूं, तब तक आप मुझे एक एक फंक्शंस बताते जाइए. मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, है ना. ये आपको बोलते चलिए मेरे साथ, मैं तब तक इमेज शेयर करता हूं. व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? एनीवन, एनी आइडिया? Taste. टेस्ट. अग्री. एनी मोर? Helping to mix saliva with food. ठीक है, उसको अपन कह देते हैं मिक्सिंग ऑफ सलाइवा. अग्री. और कुछ? और सोचिए, Speaking. प्लीज से लाउडली. Speaking. Pardon, not getting your word. Sir, she is telling speaking. अच्छा, स्पीकिंग. ओके ओके ओके. स्पीकिंग में कैसे मदद करती है बाय द वे? स्मेरा, Yes, sir. how it helps in speaking? Sir, See, no problem. बच्चों देखिए, टेस्ट का परसेप्शन है, स्पीकिंग है. सी, साउंड जनरेटेड फ्रॉम साउंड बॉक्स.
कुछ भी बोल के देखिए, it will vibrate. It's not producing words, it's producing sound. It is producing sound, not the words. But what the words generated from tongue, teeth, lips, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप बिना लिप्स को अटैच किए, बिना लिप्स को चिपकाए, you can't pronounce it. There are so many words which needed that the attachment of tongue from the upper palate. There are some words that needs the tongue should touch the soft palate. There are some words that needs to teeth to joints. So words generated from buccal cavity and sound generated from sound box. Smera, agree? Yes, sir. Perfect. Any more? Any more? और सोचिए, बहुत फंक्शंस हैं. Any more? Any more बच्चों? अरे, deglutition. Do you know deglutition? Blowing of food. Deglutition मतलब अंदर पलटाना. भाई एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको अंदर पलटाना, तभी तो खाना अंदर जाता है. And sometime, what do you think about the pre-capturing? Pre-capturing? Understood? Yes, sir. Okay. So first, speaking आप लिख सकते हैं. Tongue is universal toothbrush. Do you know this? Yes, sir. Perfect. यानी speaking हो गया, deglutition हो गया, speaking हो गया, universal toothbrush हो गया, pre-capturing हो गया. These are the functions of tongue. उसे लिखने Sir, की जरूरत. pre-capturing does not happen in humans. No? हमें कौन सा प्रे को कैप्चर करना है दोस्त? मानस, Yes. तू किसको पकड़ के खाएगा मेरे भाई? सर किसी को भी नहीं. बस अपना काम, अपने लिए तो ये हथियार है बहुत बड़ा. मानस, बहुत बड़ा हथियार है अपने लिए, तो है ना? Yes, sir. जबान. Yes. जबान. नो प्रॉब्लम. तो टंग के फंक्शन बच्चों मैं नहीं लिख रहा हूं. आई एम गोइंग टू शेयर एन इमेज विथ यू. इसके पहले मैं आपको Can you see the picture? Vinas? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. I hope कि काफी हद तक हम लोग अच्छे से बना लिए थे डायग्राम. Is it? Yes, sir. Perfect. तो मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, but still I'll share this image and अच्छा, एक पॉइंट रह गया. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, lined by stratified squamous epithelia. Please write somewhere. Lined by stratified squamous epithelia. Noted? Yes, sir. Perfect. Same images I have shared with you all so that कभी को छूट जाए तो you can check it. No problem. Next इस पर आते हैं बच्चों. ये तो हमने बहुत अच्छे से बना लिया था. Okay. Now can you see this Walder ring? Yes, sir. Please check and just imagine what I was trying to say. Pharyngeal tonsil. Can you believe or can you imagine, not believe, can you imagine this part where I highlighted, spotlighted, this part will go at the back side of the structure? Pharyngeal tonsil. Can you? Yes, sir.
बिकॉज फेरेंजियल टॉन्सिल मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट इमेजिन जो मैंने आपसे कहा था। अच्छा चलिए आगे और देखते हैं। ट्यूबल टॉन्सिल्स एंड यूस्टेकियन ट्यूब, सो दैट यूस्टेकियन ट्यूब, कैन यू इमेजिन दिस आर द ईयर्स स्ट्रक्चर? Yes, sir. तो उसके साथ एसोसिएटेड ट्यूबल टॉन्सिल, सी हर जगह पर दे रखा है टॉन्सिल, कहीं से भी जाए तो पैथोजन विल बी ट्रैप्ड एंड बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी इट विल बी डिस्ट्रॉयड, नो प्रॉब्लम। नीचे देखते हैं यार, पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेट, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट्स, और सबसे नीचे यदि आप देख रहे हैं तो लिंगुअल टॉन्सिल। एंड यदि आप अपना डायग्राम देखिए जो हमने टंग का बनाया है, तो आपको दो स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखेंगे लिंगुअल टॉन्सिल। प्लीज चेक। Yes, sir. अग्रीड? ओम, मनोली, सर वो सिद्धि, आप पीछे का बताया है वो इमेजिन करते नहीं आ रहा। इमेजिन करते नहीं बन रहा है। ओके, अब इमेजिन उसको मैं करवाता हूं कैसे। मैं ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, क्या आप इसे बना लेंगे? चलिए बाद में बनाइएगा, मैंने शेयर तो कर दिया, इसे बाद में बनाइएगा। मैं आपको उसको इमेजिनेशन करवाता हूं। अभी ये डायग्राम को बच्चों ध्यान से देख लीजिए एक मिनट, फिर मैं आपको इमेजिनेशन का करवाऊं। ध्यान से देखिए, और क्या करना है यहीं पर बताता हूं। ओम, लिंगुअल टॉन्सिल के जो दो टॉन्सिल दिख रहे हैं, जस्ट इमेजिन, कैन यू होल्ड दिस लिंगुअल टॉन्सिल? दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं इसे? ओम, यस सर। इसको दोनों हाथों से पकड़कर अपने गले में फिट कर दीजिए, तो लिंगुअल टॉन्सिल आपके सामने वाले पार्ट पर आएगा। अग्री? ओम, सर नहीं आ रहा। अरे भाई सिंपल है ओम, ये गले में पहन लो। ओम, इस रिंग को गले में पहन लो। नाउ कैन यू इमेजिन? यस। अब इसको पहन लिया तो लिंगुअल टॉन्सिल वाला पार्ट सामने आ गया। हाँ सर। अग्री? हाँ सर। अब क्या करो, उसको कंप्रेस करो, क्योंकि पहना है अपन ने गले पर, तो डेफिनेटली हमने आउटसाइड उसको वियरिंग किया है। ये स्ट्रक्चर तो इनसाइडर स्ट्रक्चर है ना। हाँ सर। तो टंग के पास आ गया लिंगुअल टॉन्सिल। हाँ सर। थोड़ा सा पीछे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कान आ जाएंगे। सॉरी, हाँ पैलेट, सर। पैलेट आ गया, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। अग्री? यस सर। उसके थोड़ा ऊपर चले गए तो ईयर आ गए, यस सर। और पीछे चले गए तो कॉमन पार्ट आ गया, फेरिंग्स। यस सर। मतलब मेरे कहने का कि व्हाट आई एम डूइंग, this part, this one is your anterior part, this one is your posterior part. So posterior part में pharynx, बकल कैविटी को ओपन करो, सबसे पीछे क्या मिलेगा? ओम, ओम, यस सर। सबसे कोई भी बताइए मुझे, नॉट ओनली ओम। यदि बकल कैविटी आपने ओपन की, व्हाट विल फाइंड मोस्ट बैक साइड? फेरिंग्स। फेरिंग्स। तो पीछे की तरफ कौन सा टॉन्सिल है दोस्त? फेरेंजियल। फेरेंजियल टॉन्सिल। सबसे सामने की तरफ जबान निकलती है, टंग निकलती है, तो सबसे सामने कौन सा है? लिंगुअल टॉन्सिल। अग्री? यस। फिर यहां पर आपके ये हो गए पैलेट वाले पार्ट, और उसके थोड़ा सा यदि ऊपर जाए तो कौन से पार्ट? ईयर वाला पार्ट, दैट इज पैलेटाइन टॉन्सिल, सॉरी ट्यूबल टॉन्सिल। एवरीवन अंडरस्टूड? सिद्धेश? Yes, sir. सिद्धेश, स्मेरा, Yes. शौनक, यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। Yes, sir. Okay. So, okay.
मैंने ये आपको ऐसा बताया और ये अंदर से रहेगा तो छोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा, यह यहां पर हो गया, वो थोड़ा सा ऐसा जाएगा अपर पार्ट, पीछे की तरफ से नीचे जब यहां पर आएगा दैट विल बी pharyngeal पार्ट दैट यस्टरडे वी डिस्कस थ्रू द डायग्राम. सो आई डोंट थिंक कि मुझे वॉल्डर रिंग बनानी है. डू वी नीड टू, आप लोग बना लेंगे या मैं बनाऊं? सर बना लेंगे. स्पीक, क्लीनिंग, स्पीकिंग, क्लीनिंग, और क्या था? प्रे, प्रे कैप्चर, और क्या था? यूनिवर्सल टूथब्रश. हो गया, क्लीनिंग लिख दिया ना मैंने. और Salutation. टेस्ट. Mixing of फाइन. अब वॉल्डर रिंग यदि मैं बनाना चाहूं, can you see this structure like this? Yes Yes, or sir. no? Yes. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आप यहां पर देखेंगे पैलेटाइन, क्योंकि पैलेट है. उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो आपको ईयर का स्ट्रक्चर दिखेगा, जहां पर आप देखेंगे कौन सा टॉन्सिल, this is what palatine tonsil, this is what lingual tonsil. Perfect. और सबसे ऊपर की तरफ आपने देखा था which one? Pharyngeal tonsil. Pharyngeal tonsil. Pharyngeal tonsil. अंडरस्टूड दोस्तों? इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या कह दिया? Walder's ring. Understood? Yes, sir. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी याद आया, टेम्परेचर रेगुलेशन. Have you seen ever in any organism? Yes sir. Dogs. Cheetah. Yes, sir. Dogs. पैंटिंग कहते हैं उसको, पैंटिंग. पैंटिंग मतलब वो जो हाफने लगता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डॉग टंग को बाहर निकाल के, दैट इज पैंटिंग. ओके, सो दिस वाज द टंग. मैंने बच्चों टीथ का स्ट्रक्चर आपसे शेयर किया है, वो टीथ का स्ट्रक्चर आप बनाइएगा. मैं एक्सप्लेन करूंगा या अभी कर ही देता हूं, नो प्रॉब्लम. फिर उसके बाद की कहानी को आगे बढ़ाते हैं. टीथ, बिकॉज बकल कैविटी का एक वही पार्ट बच गया है जो अपने को पढ़ना है. ग्लैंड्स, हम लोग एक साथ सारी ग्लैंड्स देखेंगे. एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर एक साथ देखेंगे, फिर एसेसरी ग्लैंड्स देखेंगे, देन मैकेनिज्म पर. स्ट्रक्चरल पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना टीथ, उस पर आते हैं. प्लीज चेक एनी डाउट इन टंग. प्लीज चेक एनी डाउट इन टंग. No, sir. No, sir. Sir, can you please explain the function of papillae? Papillae, these one, na? Yes, sir. See, directly papillae is the aggregation of those taste buds, or I should say the clumping, cellular clump. Papillae होती है जनरल एक सरफेस स्मेरा. That papillae contains some taste buds. Papillae individual don't have any function, but papillae provide an area for maximum and rapid absorption. So as soon as the material of any nature reaches to that region, soon the taste buds activates. So aggregation of those taste buds in a limited and constricted area makes a papillae. Smera. Okay, sir. Understood. Understood? Understood? Yes, sir. Perfect. Teeth का बच्चों स्ट्रक्चर में I want to share with you.
Winners, can you see that image? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Just try to understand. Just try to understand. क्योंकि मैं नीचे यदि कोशिश भी करूं, ठीक है, कर like this so that I can use highlighter, spotlight it. The outermost layer you find, what is this? Enamel. Enamel. The hardest substance known in animal kingdom. Do you agree with this? Yes. Yes. Yes, sir. Perfect. Enamel is composed of. What enamel is composed of? Calcium. Inorganic. What enamel is composed of? Enamel is, which is the hardest part of the body. It is inorganic in nature. It is inorganic in nature and composed of calcium phosphate, calcium hydroxide, calcium carbonate, which is the hardest. Organic, if it is organic, it will be a bit softer than inorganic. So it is the enamel, which is the hardest part, hardest substance known in animal kingdom. It is not the bone. Teeth is not the bone. Please keep it in mind. It is not the bone. After that layer, there is a layer of dentine. After the layer of enamel, which is the outermost layer, after that dentine layer is there, which is secreted from odontoblast, which is, सुनते रहिए आप शांति से, कुछ अभी लिखने का जरूरत नहीं, because I'm going to share this, already shared. I think, Sudesh, I hope I shared this image. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So there is no problem. Note करने पे जोर मत दो, पकड़ने पे जोर दो, concept पे जोर दो. Enamel, the hardest substance, outermost, then dentine layer, which is secreted from odontoblast. Odontoblast. Odonto means bony. Odonto means bony. Though it's not bony, but that much hard. And blast, wherever in biology you will learn blast, it is forming. And if you read about the clast, C-L-A-S-T, clast is destroying activity. Blast is forming activity. Odontoblast, spheroblast, neuroblast, myeloblast. All these are forming cells. Myelo, muscle banane wali. Neuro, neuron banane wali. Odontoblast, this dentine banane wali. After that, a layer, ivory. Ivory means आपको पता है ये जो डेंटाइन बना होता है आइवरी का बना होता है, जो कई साउथ में यदि आपको ध्यान होगा किसी को तो एलिफेंट टस्क, डू यू नो? Yes, sir. यस, दिस बहुत कॉस्टली बिकता है, बहुत कॉस्टली, क्योंकि उसके ऑर्नामेंटल यूज उसका बहुत ज्यादा होता है. तो ये 3 लेयर होती है बच्चों, एनामल, डेंटाइन एंड दिस आइवरी. अब उस ओवरऑल टीथ के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. देयर आर 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट. क्राउन, दैट आई टोल्ड यू, दिस एनामल, डेंटाइन, जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट अपर summit part is crown. The middle part is neck, which is fitted with gums, which is fitted with hole by the gums, and one is root, which is completely dipped in the socket of gums. So that is root part. Root, neck and crown. So कई बार आपने सुना होगा दांतों में दर्द हो रहा है, क्या करना है? RCT करना है. Do you know RCT? What is RCT? Anyone heard? Root canal. थेरेपी. अब रूट कैनाल थेरेपी क्यों जरूरत पड़ती है ये समझो बच्चों. जस्ट इमेजिन किसी का प्रॉपर ब्रशिंग न करने से या किसी प्रकार का कुछ ऐसा मटेरियल, टोबैको च्यूई करने से, पान जो कुछ भी है, सपोज दिस लेयर गेट डैमेज, सो डेफिनेटली दिस पार्ट विल बी एक्सपोज्ड. यस और नो? Yes, sir. Yes or no? If this part is damaged by any acid deposition or by any tobacco chewing or not proper cleaning, cavities कुछ हो गया तो upper part will be damaged. Yes or no?
Yes, Yes, sir. sir. Yes. And then it will be exposed. Kaushiki, agree? Yes, sir. If this will be exposed, then directly whatever you are eating, that directly reach to those blood vessels. Yes, sir. Agree? Yes, sir. और इसीलिए बच्चों, इसीलिए फिर हमें सेंसेशन होने लगता है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, खट्टा लग रहा है, दांत खटखटा रहे हैं। क्यों भाई? सीधे कोई भी चीज यदि नर्व्स तक पहुंचेगी, कोई भी चीज नर्व्स तक पहुंचेगी तो वो सेंसेशन देगी आपको। और इसके अंदर रूट में जो पल्प कैविटी लिखा है, इट कंटेन्स व्हाट? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट नॉट। दिस इज ओनली द न्यूट्रिटिव वन ना, अदरवाइज सप्लाई कौन करेगा ओडोंटोब्लास्ट को? जड़ों से तो यही जुड़ी हुई हैं, ये निकली हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, इस सारा सब सप्लाई कर रही है इनको। तो न्यूट्रिटिव तो यही हुई। So this is part of root which extended to the neck region, So the outermost is crown, the middle one is neck, which is held by these gums, and the last one is root, which is fitted deep into socket, which contains the pulp cavity, which is the actually nutritive layer. And the fitment of a tooth with gums, there is a layer, this cementing layer, likha hua hai, this cementing layer, it contains, do you know which cementing material is? Anyone? This is nothing other than hyaluronic acid. And a ligament for the support, periodontal ligament. But the question in need, alveolar bone. जैसे ही बच्चा पढ़ता है alveolar bone, वो कंफ्यूज हो जाता है कि alveoli में कहां से bone आ गई? Alveolar bone that contains some airy space. That's why called alveolar. And since it is fitted and held and hold the tooth, it is called bone. It is alveolar bone. Understood? Structure understood? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों मैंने बेहतरीन कोशिश करके आपको बताने की कोशिश की है. The outermost is crown, neck, root. Crown, the upper summit part. Neck, held by gums. Then root, fitted deep into the socket. Sir, Held by, attached by cementing part, hyaluronic acid. Attached by ligament, supported by bone. And this is the pulp cavity which have blood, lymph, nerves, connective tissue. And when these four assembly is there, please try to understand and note in your brain, if this is collectively present at a part, this is known as plexus. अच्छा मैंने बताया था कल परसों बताया था शायद मैंने, if I'm not wrong. Yes, sir. This is plexus. But if P is replaced by F, then what? Region of binding. Perfect. Perfect, my dear. That means what I expect, कि this is a plexus, not the flexus. Understood? हाँ बोलो. सर आपने बोला कि डीप बोन नहीं है, लेकिन सर वो लिगामेंट तो बोन को बोन से कनेक्ट करता है ना. इसीलिए तो दोस्त पेरिडोंटल लिखा है ना. It's not peri means, do you know what is peri and para? ओम No, एक होता है. हाँ, पेरी एंड पैरा होता है बच्चों बियॉन्ड दिस. पेरी एंड पैरा मतलब बियॉन्ड दिस. लिगामेंट जो होता है दैट कनेक्ट्स व्हाट? बोन टू बोन. ओम अग्री? yes sir. टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल. अग्री? yes sir. दिस इज पेरिडोंटल. दिस इज पेरिडोंटल क्योंकि एक बोन वाला पार्ट है एल्वेलर बोन और एक बोन लाइक पार्ट है, नॉट बोन.
ohm. Getting a point? Yes, sir. One is alveolar bone and one is bone-like structure, harder than bone. This is tooth. Understood? Yes, sir. That's why there is a word used, periodontal ligament. Understood? Yes, sir. चलो, अब ये तो बात हुई बच्चों जो मैंने आपको शेयर करनी है और आपको इसमें मिल भी जाना है, किसमें? अपने मॉड्यूल्स में. बट what I'm going to share now, you must know this. भाई यदि tooth है, it is a living part, then definitely it should be supplied with nerves. It should be supplied with nerves. So उसको supply करने वाली upper maxillary nerve and lower mandible nerve. Because you must know, winner must know that upper jaw is known as what? Upper jaw, lower jaw. Do you know upper jaw is known as what? Maxilla. Upper jaw is known as maxilla and lower jaw is known as mandible. Do you know this? Yes. Okay, you must note upper jaw is maxilla and lower jaw is mandible. तो दोस्तों जो upper jaw के teeth को nerve supply करती है वो maxillary nerve और जो mandible lower jaw के teeth को nerve supply करती है that is mandible nerve. और यदि आप मुझसे पूछेंगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, यदि बायो लिया तो ही पढ़ेंगे कि both the nerves are the fifth number of cranial nerves. टोटल 12 pairs of cranial nerves होती हैं, उसमें फिफ्थ नंबर की नर्व होती है ट्राइजेमिनल. उससे दो निकलती हैं, अपर मैक्सिलरी और लोअर मैंडिबुलर. एंड सिंस इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, सो इट शुड बी सप्लाइड विद आर्टरीज. सो आर्टरीज आर मैक्सिलरी आर्टरीज एंड द नर्व्स veins are jugular veins. Arteries that supply oxygen are maxillary arteries and the veins that carries deoxygenated blood is jugular veins. So maxillary artery, jugular veins, maxillary nerve, mandibular nerve, these are the part that we need to know the extra part. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Perfect, my dear. So next lecture, what I expect in next lecture, what I expect that we will go through the dental formula. मैं next इसमें आपसे पूछूंगा एक dental formula. Do you know our dental formula? In fact, my dental formula, not your ones. My dental formula. 2 1 2 3 1 2 1 2 3. Do you know Smira your dental formula? No, sir. It's your one. It's your one, Smira, and this is my one. Okay? Juvenile or adult. Understood? ये बताऊंगा मैं, ये सब पढ़ेंगे अपन, अभी समझेंगे. बट अभी मैंने आपको बकल कैविटी जस्ट फिनिश किया, देन इसोफेगस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टमक और इंटेस्टाइन. Then we'll go for the physiological part. So 2 more lecture we need for the completion of 2 or 3 lectures we need for the completion of digestive system. बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे. Yes. And the formula. आई होप कि इतने मजे से तो यार कभी भी खाना खाते समय भी विचार नहीं किया होगा हमने, बट वी एंजॉय. आई होप कि वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बायोलॉजी. बायोलॉजी समझ में आ रहा है बच्चों की बोर हो रहा है? समझ रहे सर? समझ रहे हैं सर. आई एक्सपेक्ट जिसने भी लेना है नहीं लेना वो बात की बात है बच्चों, उस पर कोई फोर्स नहीं. जस्ट चूज योर करियर. बट कहीं ना कहीं हमें ये बायो इतना कर लेना है क्योंकि विनर बैच के साथ, एक ड्रीम बैच के साथ टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में केवीपीवाई निकालना है. सो दैट मैं तो यही कंसीडर कर रहा हूं कि 11th में आप बायो को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं और क्रैक कर रहे हैं अपन केवीपीवाई. चलिए, एनी डाउट इन टुडे? हाँ शौनक, यू रेज्ड योर हैंड, बोलिए. शौनक, you raised your hand?
Lisa Patel, can you repeat what are the papillae? Papillae का statement मैडम मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ. Papillae are the cluster of the taste buds or the cells that gives a surface area for absorption and for the taste buds. Lisa. Shaunak, Smira, you raise your hand. Tell me. Sir, what is the dental formula? Pardon, Smira, फिर से. The dental formula क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ये नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगा बच्चों. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स. 2 incisors upper jaw, 2 incisors lower jaw, into 2 right and left. So 2 2s are 4, 2s are 8. 8 हो गए incisors. 1 plus 1 2, 2s are 4. 4 will be canines. 8 plus 4 12. 2 plus 2 4 into 2 8. 8 will be premolars. 8 will be premolars. Understood, Smera? Yes, sir. And 3 plus 3 6, 2s are 12. These are the molars. Understood? Yes, sir. 8 plus 4 plus 8. 8 or 8 16 plus 4 20. 20 plus 12 32. Total teeth are 32. Agree? Yes, sir. That will explain definitely in the next lecture. Anyone who has doubt? हाँ बोलिए. सर जो सॉफ्ट पैलेट रहता है वो लोअर जॉ में रहता है कि अपर जॉ में कि दोनों जॉ में रहता है? अरे सॉफ्ट पैलेट किसी जॉ में नहीं है भैया. लोअर जॉ के बीच में सॉफ्ट पैलेट. ओके सर. ओके. यस सर. Perfect, perfect, no problem. Any more doubt in today's session? Perfect. I'm going to close the session. Please, I'll share this image and be ready with teeth and the further part esophagus. All the best.